اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیشن نمبر 48 ہے اور ہم جز 27 کو دیکھیں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے سورۃ القاف کو دیکھ لیا تھا۔ سورہ ذاریات آلموسٹ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی، اس کے کچھ میرے خیال مڈل سے تھوڑی سی زیادہ بات ہم نے کر لی تھی، تو اس کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں ہم، اور پھر ہم آگے سورہ زاریات کی جو ہے وہ جو پارٹ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ملائکہ بھیجے گئے تھے، وہاں سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے پھر۔ تو سورہ داریات کی ہم نے دیکھ لی تھی تفسیر، وہ شروع کیسے ہوتی ہے، ہواؤں کے بارے میں بات ہے، اور پھر قیامت کے بارے میں ہے بات، اور پھر ہم نے اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا جو شان نزول ہوتا ہے سورہ قاف میں وہ بھی دیکھا تھا کہ مفصل آیات اور وہ مجمل، وہ تو خیر ایمان مفصل مجمل ہے، لیکن مفصل آیات جو ہیں صورتیں کون سی ہیں، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھا تھا ہم نے۔ پھر ہم نے تقوی، احسان اور تقوی میں بھی دیکھا تھا کہ کیا ہے تقوی، جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی فرسٹ 5 آیات میں آ جاتا ہے، اور پھر احسان جو ہے وہ سورۃ لقمان کی فرسٹ 5 آیات میں آ جاتا ہے، بڑی سملر ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا لنگوسٹک چیزوں کو دیکھا تھا عربی کے حوالے سے، فتنے کا مطلب جو اس آیت میں 14 میں یوز ہوا ہے اپنے اوریجنل معنی میں۔ اور پھر ہمارا یہاں پہ آ کے ہم نے روک دیا تھا سلسلہ، جہاں پہ ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، پہلا رکوع جو ہے وہ حافظ ساجد تلاوت کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقها يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ تو تلاوت کے وقت تھوڑی باتیں ذہن میں آ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم تو اس کا کور کر لیا تھا اس آیت کا، لیکن یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آیت 16 میں آخذین ما آتاہم ربہم،
तो ये मैंने जो लास्ट टाइम भी थोड़ा सा चेक किया था, तो आखदीना जो है, ये जो जिस तरह ये बयान हुआ है, ये जिस तरह जन्नत में जाने की बात हो रही है, मगर ये जो उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है जो जन्नतियों की, कि ये बड़ी आजिजी से ले रहे हैं अपने रब की जो है ना अम, का रिवॉर्ड। तो ये इवन लेना भी जो है, अल्लाह ताला ने इसको नकल किया बड़ी खूबसूरती से, ये जो वर्ड यूज़ किया है बड़ी बड़ी खूबसूरती से। तो इसकी जो स्कॉलर बयान कर रहे थे कि ये बहुत आजिजी है इस यूज़, ये जिस तरह यूज़ हुआ हुआ इधर अरबी में ना, आखदीन मा आताहुम रब्बुहुम। और फिर आगे अल्लाह ताला इन लोगों की क्वालिटीज बयान कर रहे हैं कि भाई ये कौन लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे, ये कौन है जो बड़ी आजिज़ी से इनको मिलेंगे सारे रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो ये वो हैं जो रातों में कम सोते थे, अल्लाह ताला की जो है वो याद में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ रहते थे। और दिन में जो भी होता था वो अपनी अल्लाह के साथ वो अल्लाह ताला के साथ जो है कनेक्शन अपना नहीं तोड़ते नहीं थे, किसी भी कीमत पे। और फिर एक और क्वालिटी के जो बिल्कुल जो करीब का हिस्सा है, जो फजर से पहले कह लें 45 मिनट्स घंटा, तो वो बड़ा स्पेशल है। तो वो उसमें बैठ के अल्लाह से इस्तगफार करते थे, अस्तगफिरुन। और अपने माल में उनका हिस्सा होता है। और फिर इसके बाद जो एक बात थी, कि ये वाली जो बात है कि जो रिस्क है, जो माश है, जो सस्टेनेंस है, इंसानियत की जो है, वो पूरी अल्लाह ताला के आसमान में और लॉक्ड है। और ये तो ऐसा है कि मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी यकीन उन लोगों का ऐसा है, और हमारा भी यकीन इंशाल्लाह ताला ऐसा होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, मैंने कहा इनको मैं कर देता हूँ जिक्र। अच्छा, हम जो बात करेंगे वो थोड़ा सा आगे जहाँ की तिलावत हमने नहीं की है, हम आगे से थोड़ा करेंगे। 31 से आएगी बात। तो यहाँ पे जो 31 से 46 बात की जाएगी, वो है कि जो सारे जो अल्लाह ताला ने जो नेशंस डिस्ट्रॉय कर दिए, जिसमें से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और ये वाकया इस तरह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे लूत अलैहिस्सलाम की भी कौम थी सिमिलर टाइम। तो उस वक्त ये भेजे गए फरिश्ते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ये जब फरिश्ते आए, तो इनके दो काम थे। एक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने इसहाक अलैहिस्सलाम की वो देनी थी बशारत। और ये भी मौजज़ा था कि इतनी ओल्ड एज में उनकी वाइफ को, जब वो हो चुकी थी बांझ, उनको औलाद होगी। और फिर ये कि इनको पनिश भी करना था कौम लूत को। और फिर आगे इसी तरह जब इनको ख़त्म किया गया, फिर अल्लाह ताला ने इनको लिंक किया गया, सारे जो भी नेशंस अल्लाह ने डिस्ट्रॉय किए, फिरौन, आद, समूद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, सबका साथ में इनको जमा कर दिया अल्लाह ताला ने एक जगह। अब इसमें यह है कि इस वाकये में थोड़ी अगर डेप्थ में हम कभी देखें इंशाल्लाह, तो इसमें काफ़ी काफ़ी और चीज़ें भी आ जाएंगी। लेकिन समरी में देखें तो जब ये आए फरिश्ते उनके पास, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खातिरदारी करने के लिए वो बड़ा सा बछड़ा, वो भी अल्लाह ताला ने इधर किया है, जिक्र किया है कि उसको ज़िबा करके तैयार करके ला के रख दिया, और उन्होंने खाना नहीं खाया, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए। तो फिर उनको पता भी चल गया कि फरिश्ते हैं। तो फिर वो परेशान भी हो गए, कोई मतलब बात है, कोई डरने की बात है। तो उन्होंने कहा कि डरे नहीं, आपको तो बशारत देना है। हाँ। फिर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ये इनकी कौम में लूत की तरफ भेजे गए, क्योंकि उनकी जो ये जो हम जिन्स परस्ती वाला अमल है, वो हद से ज्यादा बढ़ गया है, वो उससे आ भी नहीं रहे पीछे। और इसी सूरत में कि वो फिर फरिश्तों के पीछे भी पड़ गए, और वो भेजी भी गए थे एज अ ट्रायल, वो खूबसूरत आदमियों की शक्ल में भेजे गए थे दो। तो वो उनके पीछे भी पड़ गए थे। तो फिर इसमें आगे भी ये तफसीरों में भी आता है कि लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मेरी बेटियों से निकाह कर लो, तुम ये आदमियों से क्यों अपनी शहवत पूरी कर रहे हो। तो तो फिर उसमें भी बाज नहीं आए वो लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो वही करना है जो हम जिस पे हम तुले हुए। तो फिर जिस तरह का अजाब आया है, अम, अल्लाह ताला ने अजाब भेजा हुआ है, वो बड़ा टेलिंग है। वो अजाब की जो है ना, तफसीर में भी है, इसको भी वो भी देख लेते हैं।
کہ اللہ ताला ने इनकी तरफ आसमान से पत्थर तो बरसाए हैं, लेकिन इनको मेरे ख्याल है कुछ रिवायात में आता है कि पहले इनको अंधा किया है, अंधा भी किया है, फिर इनको पलटा भी गया है, मतलब जैसे लिटरली अपसाइड डाउन पूरी बस्ती को उल्टा दिया, और फिर बारिश हुई है। तो इस तरह कुछ है ऑर्डर। तो आप देखें कितना सिवियर मामला है अल्लाह ताला के नज़दीक, इतना सिवियर मामला है अल्लाह ताला के नज़दीक इस अमल का, इस एक्शन का, इस ट्रांसग्रेशन का, जो आजकल बड़ा दुनिया में प्रेवलेंट है, नॉर्मल है। बल्कि हमारे यहाँ तो काम पे पूरा ट्रांसजेंडर का वो डॉक्यूमेंट है कि किस तरह उनको बुलाना है, किस तरह दे बोलना है, हे ही बोलना है, हो बोलना है, पता नहीं क्या उल्टा लटक जाना है उनके लिए। और अगर नहीं बोला है तो बड़ा मसला हो जाएगा। बल्कि उस दिन मेरी मीटिंग में भी मेरी जो है मैनेजर, वो उससे पता नहीं क्या निकल आया उसका, दे या ही या गाइस, तो कहती ओ आई एम सो सॉरी। मतलब उसको टेंशन में पड़ गई। और वो मुझे समझ आया क्योंकि मैंने अपनी एचआर के उसमें जाके देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको रिफर करना है। हालांकि कोई, मुझे तो नहीं पता कौन सा जेंडर हमारे उसमें, कोई ऐसा तो टेढ़ा मेढ़ा तो है भी नहीं, बट वो स्टिल उसको, क्योंकि वट एवर पोलिटिकल करेक्टनेस थी उसको, उसको रखना पड़ा भाई। तो टेंशन में आ गई। अब देखें, ये है रियलिटी इस दुनिया की जिसमें हम रह रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला की एक रियलिटी। अल्लाह के नज़दीक अगर अल्लाह के बस में, तो अल्लाह ताला तो ये हालत कर दें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बता रहे हैं क्या हालत कर चुके हैं। तो अल्लाह के नज़दीक ये है, और इस्लाम में भी इसकी है बड़ी क्लियर बात जो है। अच्छा, अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, कर देते हैं उलमा स्कॉलर्स, कि भाई ये ख्यालात का होना इज़ नॉट एन इशू। किसी को ख्याल आता है, इंक्लिनेशन भी है, चलो, एक्ट करना इज सिन, ठीक है। लेकिन मतलब वही है, इसके मेंटल बीमारी भी कहते हैं कुछ, आप इस्लामिक किताबें पढ़े हैं या कर, मतलब ये चीज़ हमारे दिन में है कि भाई वी नो हाउ टू हैंडल इट। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं भाई ये सब उल्टा सीधा है, इसको बस निकाल बाहर, ठीक है। हर दिल दिमाग में फतूर आ जाता है। तो इसको उस तरह देखा जा सकता है। लेकिन आप किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट करेंगे या उसको फिर एडवोकेट बनेंगे या उसको, मतलब वही नियत वाली बात है ना, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं गंद फैले दुनिया में, तो फिर आप उसको उसी तरह करेंगे। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि कहीं मैं देख रहा था पाकिस्तान में भी यूएस एड के थ्रू बहुत पहले ये प्रमोट कर रहे थे, बल्कि उनके मेरे ख्याल है कोई इस तरह कोई बेंचमार्क्स थे या उनको फंडिंग के कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे कि पाकिस्तान में ये प्रमोट करना है आपने यूएस एड के थ्रू। और वो फंडिंग थी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मतलब इनमें आपने ये आइडिया स्पेसिफिकली एलजीबीटी वाला प्रमोट करना है। और आई एम श्योर वो अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में भी कर रहे होंगे, लेकिन ये एक इंजेक्शन था उनकी तरफ से इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, कि आप पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जाए तब आपको पैसे मिलेंगे यूएस उसकी वजह से। और इसी तरह यूएस जो है, थोड़ी सी बात पॉलिटिक्स में जा रही, यूएस जो है वो इवन बर्थ कंट्रोल पाकिस्तान में पता नहीं 1980 या 90 से इन्वेस्ट कर रहा है, बर्थ कंट्रोल इन पाकिस्तान। तो ये भी एक बात है। और ये सारी बातें वो मिल जाएंगी आपको, ये कोई ऐसी कोई किसी खबर खुबर नहीं है, ये एक्चुअल बात है कि इन्वेस्ट कर रहा है, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर। शहबाज शरीफ ने इंडोर्स भी किया बहुत पहले कि भाई हाँ हमने बेसिकली, यस सर, हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपना जो है पता नहीं क्या 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट कहाँ तक लाना था बर्थ रेट पाकिस्तान में, वो ले आए हैं। तो मतलब ये सारी उनकी है, उनको ज़ाहिर इस्लाम इस्लाम से प्रॉब्लम है, तो वो तब खुल के भी दिख रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला के नज़दीक तो ये वैल्यू है। और इसमें अभी आयत में भी आगे आता है मुसव्वमतन इंद रब्बिक, कि अल्लाह ताला की तरफ से इन, ये जो, हाँ, ये जो पत्थर बरसाए गए मार्क्ड थे हम, और तफसीर में कि एक एक ओपिनियन है स्कॉलर्स का कि हर पत्थर पे हर बंदा जिसको, या बंदी जिसको ये मार पड़ने वाली थी, उसका नाम था। तो उसको जो शोला लगता था वो उसका, मतलब होता है ना, किसी बदबख्ती की बात है कि आपको वो शोले पे आपका नाम लिखा हुआ और आपको वो लगेगा, और आपकी फिर मौत आएगी उसके थ्रू। तो इतनी इतनी मतलब रिजेक्शन है। और ये देखें ना, मुसलमान इंद रब्बिक, अल्लाह की तरफ से भाई। तो अल्लाह ताला को इतना नापसंद है। तो फिर आगे इसकी 34 पे, हाँ, तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये यही बात रखी हुई है तफसीर मारिफुल कुरान में, कि हाँ, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि हाँ, और अच्छा, और अगर वो भागते भी थे इससे, तो वो जैसे ना चेस करता था, मतलब उसमें
ऑटो टारगेटिंग भी अल्लाह ताला की तरफ से थी, कि वो उसको चेस करके उसको मारता था। फिर कुछ है ओपिनियंस के ये जिब्राइल अलैहि सलाम ने इस बस्ती को उठा के पटक दिया, अल्लाह वाला। और यही है कि भाई ये वो नहीं है, वही मैंने जो जमा किया था शुरू में, तो स्कॉलर्स का ये भी है कि 3 किस्म की थी उनकी पनिशमेंट। अंधा भी किया गया, फिर उनको ऐसे पलटा भी गया, और फिर बारिश भी हुई। तो ये सारे साथ साथ और हो सकती हैं चीज़ें। अच्छा, और फिर आगे जो है, मेरे ख्याल है पिनिकल है एक हमारी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, कि हमारी क्रिएशन क्यों, अल्लाह ताला ने क्यों बनाया गया, ये बड़ा सवाल है। कोई भी कर सकता है, नॉन मुस्लिम भी, भाई हम क्या कर रहे हैं इधर। तो अल्लाह ताला ने उसको बड़ा सिंपली जवाब दे दिया भाई, कि मैंने तो पैदा ही नहीं किया जिन और इंसान को सिर्फ वर्शिप के लिए। अब इस इसमें की भी एक्सप्लेनेशन थी कि ये, हाँ अच्छा, अच्छा इसमें एक पॉइंट जो मैं देखा मारुफ कुरान में, अम, इसको बयान किया जा सकता है कि पर्पस हमारा क्रिएशन का वर्शिप है। वर्शिप ठीक है, सिर्फ नमाज पढ़ना ये वो, वर्शिप मतलब हर चीज़ में वर्शिप है। लेकिन इसमें एक बात थी कि ये जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है हमें दे दी गई है, ये मेरे ख्याल में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का, कि सबको सबको अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह की वर्शिप करें। लेकिन फ्री विल का इस्तेमाल, ये बड़ा एक मेरे लिए नई चीज़ थी। फ्री विल का सही इस्तेमाल, एक गलत इस्तेमाल भी है, एक सही इस्तेमाल भी। तो सही इस्तेमाल तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को जान लें और अल्लाह की बंदगी करें। पर फ्री विल का बुरा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल है कि आपने, कि वो जो दिया गया था आपको, पर्पस सेम था दोनों का, काफिर का और हमारा पर्पस सेम था क्रिएशन का। कोई ऐसा नहीं था कि उसने नासा पे जाना था तो ठीक है, मतलब पर्पस एक ही था। लेकिन उसका फ्री विल का जो अल्लाह ने दे दिया, इवन जन्नात को भी दे दिया, तो वो उसका सही और गलत इस्तेमाल। तो हाँ, और ये यहाँ पे लिखा हुआ, और फिर उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, कुल्लु मौलूदिन यूलिद अलल फित्रा। हाँ, ये जो हर बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है। फ़अबवाहु यहूदी यहूदानी और यू मजूसानिया। हाँ अच्छा, तो ये इस हदीस से भी हमें पता चल जाता है कि भाई बच्चे भी सारे जो हैं, इवन जायनिस्ट का बच्चा भी जो पैदा हो रहा है आज, वो जायनिस्ट थोड़ी है, वो है तो फितरत पे, लेकिन उसके माँ बाप उसको बना देंगे, जो भी शैतान काफिर जो भी। तो इस तरह अल्लाह ताला मदद ही करते हैं। जो अल्लाह ताला ने क्रिएशन किया, ऐसा नहीं कि बना के फिर छोड़ दिया कि भाई जाओ तुम जहन्नम के लिए ही बनेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरी तरफ दौड़ो, फिर रुए अल्लाह, कि अल्लाह की तरफ दौड़ो, मगफरत के लिए दौड़ो, अल्लाह की तरफ लौटो, ताकि अल्लाह ताला जो है अफेयर्स हमारे रेक्टिफाई करे। अच्छा, यहाँ पे सूरह ज़ारियात का जो है फिनिश हो जाता है जो भी था। अब हम सूरह तूर को देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समराइज किया हुआ है, फिर तफसीर को देख लेते हैं। अच्छा, पहली 28 आयत में जो है वो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो है कॉन्सेप्ट। और शुरू इसी तरह होती तूर, ये जो माउंट तूर है उसके बारे में, अम, और फिर किताब के बारे में, बैतुल मामूर के बारे में। और बैतुल मामूर ये वो कह लें काबा है जो आसमानों पर है, जिस पे फरिश्ते आते हैं, इसका तवाफ करते हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर भी गए थे इसरा वल मेराज, तो वहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए थे कमर अपनी ना, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इधर बनाया काबा, तो अल्लाह ताला ने उधर उनको जैसे एक तरीके से एक 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 स्टेटस दिया कि भाई आप बैतुल मामूर के जो हैं वो टिक लगाए हुए हैं। फिर इसी तरह फिर कयामत के बारे में एक है, बड़ी बड़ी सख्त आयत हैं, जिस जब आसमान हिलेगा, फटने वाला होगा। और ये जो हैं, ये जो लोग हैं, ये ऐसी बस फजूल आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और फिर बिलीवर्स का क्या, उनका होगा रिवॉर्ड। फिर इसी तरह अम, वो कहेंगे, जो है ईमान वाले उस वक्त कहेंगे कि देखें हम दुनिया में जो है वो अपने रब से डरते थे, मतलब गैब की हालत में, जब सब इट वाज इजी टू नॉट ओबे, बज़ाहिर बज़ाहिर देखा जाए तो आज की दुनिया में, तो फिर हम डरते थे।
हम खौफ करते थे अल्लाह ताला से, और इसी इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें, देखें, और जहन्नम की हवा से बचा दिया, मतलब करीब भी नहीं आने दिया, अल्लाह ताला ने बचा दिया। और अच्छा, फिर ये आगे जो है दावा कैसे करना चाहिए, माज़अल्लाह वो इसमें आ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तोहमत, बुरी बातें, कुरान पे डाउट, ये सब जो है इस तरह क्या आ रहा है 29 से 49 पे के दरमियान। और फिर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या तुमने अपने आप को खुद बनाया तुम लोगों ने, और क्या उनके पास आसमानों की खजाने या जो हिडन जो बातें हैं उसके बारे में नॉलेज है। अच्छा, तो ये हमने समरी कर ली, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं तफसीर से सूरह तूर के हवाले से। यहाँ पर अच्छा, वर्च्यूज ऑफ सूरह तूर में है कि अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के वक्त ये तिलावत कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत बड़ी खूबसूरत थी, इसमें आ गया। अच्छा, फिर एक सहाबी का था कि वो जब बीमार भी हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तवाफ करें, तो जब वो तवाफ कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नमाज में सूरत तूर की तिलावत कर रहे थे। अच्छा, अब फिर वो कुछ बातें हमने थोड़ी सी स्किप की हुई, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये तूर जो है, जहाँ पे दरख्त हैं, ये वो माउंटेन है जहाँ पे अल्लाह ताला ने सिमिलर टू माउंट, हाँ अच्छा, सिमिलर है जहाँ पे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से कलाम किया है। और द बेसिक डिस्टिंक्शन बताई गई है कि जो माउंट है जिसमें दरख्त नहीं होते वो जबल कहलाता है, वो तूर नहीं होता है। बस इस तरह की कुछ बातें, बाकी हमने बातें तो इधर कर ली हैं, टच अभी जो है हाँ अच्छा, ये भी हम देख लिया। सही है, चलें फिर हम हदीस की तरफ देख लेते हैं आज। इसको हम नेक्स्ट वीक और इसमें थोड़ी और डिटेल्स डाल के फिर हम चेक कर लेंगे। अच्छा, मैंने कहा थोड़ा सा हम दौरे फितन के हवाले से भी देख लेते हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है काफ़ी फितने वाली चीज़ें हैं हमारे सामने आ रही हैं काफ़ी टाइम से, 3-4 साल से। तो ये मैंने कहा ये हदीस देख लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويلقى الشح ويكثر الحرج. قيل يا رسول الله آياته، وقال القتل القتل. صحیح ہے، صحیح حدیث، ابو داود کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا ہے نیریٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے، جو جو یہ قریب، فتن کے قریب جو ہے ٹائم جو ہے کم ہو جائے گا، نالج بھی ختم ہو جائے گی، ڈکریز ہوتی جائے گی، سول اسٹرائی فتن سامنے آتے رہیں گے، مائزرلینس جو ہے وہ دلوں میں آ جائے گی لوگوں کے، اور انحرج will be present. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، یہاں پہ جو ہے پھر نبی سے پوچھے حرج کیا چیز ہے، تو آپ سے سنے کا مطلب وہی ذبح ذبح، قتل قتل۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، اور ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے دور الفتن کی حدیث سے، تاکہ ہمیں گائیڈنس بھی ملے، تھوڑی سی دل کو بھی ایک طریقے سے سودنگ ملے، کیونکہ آپ سے رسم کے جو الفاظ ہیں بڑے وہ دل کو تسکین دیتے ہیں، بڑی سودنگ افیکٹ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لیے عربی بھی پڑھنا بڑی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ٹرانسلیشن بالکل مطلب ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں۔ سوچیں جب سن رہے ہوں گے صحابہ کرام، کیا ان کو پتہ چل رہا ہوگا، یا کیا ان کو محسوس ہو رہا ہوگا، تو وہ افیکٹ اپنے اوپر لانا بھی ضروری ہے، کہ میں سن رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، بھائی میرے تو مائنڈ ہی نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے حالات آس پاس، تو یہ قرآن مجید کو پڑھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کو پڑھ کے بھی دل میں تھوڑی سی ٹھنڈک آئے گی کہ ٹھیک ہے بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ لوں گا۔
تو اللہ ताला हमें तौफीक दे अमल करने पे, जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उस पे अमल करें, उसको समझें, और अच्छे से अच्छा हम अपने दिन आगे जो हैं उनको गुजारें। तो इस पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट उस पे देखते हैं करंट अफेयर्स पे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार हुज्जतन या रब्बिल आलमीन, आमीन। तो नबील भाई, अभी आप जी, कर। मैं जो है स्क्रीन टेक ओवर कर लेता हूँ। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। मोहित प्रेजेंट करने का खास तौर पे सोर थ्रोट के साथ जो है काफ़ी चैलेंज होता है, तो जज़ाकल्लाह खैर। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी। जी जी। जी, थैंक यू। तो एज ऑलवेज हम लोग करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। मैं जान के करंट अफेयर्स में सिर्फ जो CNN और जो BBC बोलता है सिर्फ वो वाली एंगल नहीं लाने की कोशिश करता। तो वो ऑल्टरनेट जो पर्सपेक्टिव है वो हमें देखना ज़रूरी है। तो दो तीन क्विक फायर जो है अपडेट्स हैं। तो ये एक मेरी नज़र के सामने से गुजरा था, ये मिड नवंबर की न्यूज़ है। और सिडनी, मेरे ख्याल में वेस्टर्न सिडनी का एक सबर्ब है फेयरफील्ड, तो वहाँ पे ये न्यूज़ जो है मिड नवंबर में आई थी कि एक प्लॉट है, उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है मस्जिद की। तो ये उन्होंने जो है बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बड़ी डॉक्यूमेंटेशन इसकी चलाई कि देखें ये प्लॉट की बाउंड्रीज ऐसी हैं और इतने फंड्स यूज़ हो रहे हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे थे। और उसमें मेयर भी इन्वॉल्व था, ये जो बंदा है फ्रैंक, के सब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास घर रहने को नहीं है और मस्जिदों को जो है लैंड दे रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइसिंग पे। तो अभी आप देख सकते हैं डेली टेलीग्राफ ने ये न्यूज़ चलाई, फिर 7 न्यूज़ एक आउटलेट है उन्होंने भी चलाई, फिर स्काई न्यूज़ पे भी चली, फिर पॉडकास्टर्स ने भी चलाई। ये बंदा जो है बेन, काफ़ी इसकी फॉलोइंग और रीच है। और फिर उन्होंने बाद में लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी लाके ऑन एयर चलाना शुरू कर दिए। जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने चलाया था ऑस्ट्रेलियन इराकी मुस्लिम सोसाइटी का, जैसे कि एज इफ के ये बड़ा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसपे नाम भी थे, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है अहमद बिन अली तालिब, कि ये बंदा जो है मॉस्क का रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने जो है रीच आउट किया हुआ है, मतलब काफी डिटेल इन शॉर्ट जो है उन्होंने चलाई। अच्छा, ये तो था मेन स्ट्रीम। अब देखते हैं हुआ क्या उसके बाद। ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया, मैंने जान के किया हुआ है कि ये जो है ये एक एक फॉल्स फ्लैग कह लें, या इसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था। अच्छा, बाद में क्या हुआ कि ऑल्टरनेट मीडिया ने, ऑस्ट्रेलियन इराकी मुस्लिम सोसाइटी, ये वही सोसाइटी है जिसका लेटर आपने लेटर हेड देखा ऊपर, तो उन्होंने थोड़ा डिग किया कि ये क्या है, कौन है लोग। तो उनके जो ट्रस्टीज और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो ये लोग हैं। तो वो जो अली तालिब जो है ऊपर जो जो शो किया था, वो बंदा है ही नहीं, वो दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, उन्होंने फिर डिग किया और उन्होंने कहा कि यार ये जो इराकी मुस्लिम सोसाइटी है इसका रेवेन्यू कितना है। उन्होंने कहा ये तो $5,500 है। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, अगर इनके पास इतने कम पैसे हैं तो ये तो लैंड लेने की पोजीशन में नहीं होते। फिर उन्होंने इराकी मुस्लिम सोसाइटी के एक्चुअल जो स्पोक पर्सन है, जो नवार अल कतीब जो हैं, उनकी साइड से फिर आया कि यार ये सब फेक था, ये जितने न्यूज न्यूज चैनल्स ने एयर कर दिया बगैर किसी फैक्ट फैक्ट चेकिंग के, तो ये फेक था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जितने नए ये जो बड़े आउटलेट्स हैं, इन्होंने फिर कहा कि ये लेटर फेक था, और उन्होंने सिर्फ आइदर उन्होंने कहा कि हमने रिमूव कर दिए, या फिर कुछ आउटलेट्स ने कहा वी अपडेटेड आवर स्टोरी। तो आप देखें कितने सटल तरीके से 14 नवंबर को ये न्यूज स्टार्ट हुई थी और 21 नवंबर को उन्होंने कहा कि ये फेक थी, या उन्होंने कहा वी अपडेटेड द पेज, जैसे ये द स्टोरी हैज बीन अपडेटेड। तो यानी कोई भी जो है वन स्टोरी लॉन्च होती है, हमें भी पता है, नो वन फैक्ट चेक, और जब ये पब्लिक में जाती है तो इट स्प्रेड्स लाइक फायर। तो किसी को कोई परवाह नहीं है, जो मेन नैरेटिव है वो जा चुका होता है, तो डैमेज जो है वो चला जाता है। अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल आई थिंक के हम लोग जब न्यूज़ सुनते हैं, जाहिर है लोगों के पास टाइम नहीं होता फैक्ट चेक करने का, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो वैसी होती नहीं है। मूविंग ऑन क्विक, दूसरी वाली न्यूज़ जो है वो DC के नेशनल गार्ड की शूटिंग का, तो आप लोगों ने सुना होगा। वॉशिंगटन DC के 2 गार्ड्स थे, तो उनमें से एक जो है वो जो है उसका जो है वो हॉस्पिटल में थी बंदी,
اور وہ مر گئی بیسکلی نا, شی couldn't survive. اور انہوں نے جو سٹوری چلائی تھی وہ یہ کہ دو گارڈز پہ بیسکلی اٹیک ہوا تھا, ایک جو ہے ہاسپٹلائزڈ ہوا اور دوسری وہ نہیں بچ پائی. اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو امیگرینٹ ہے اور امیگرینٹس کا مسئلہ ہے, افغانی بندہ ہے 29 سال کا اینڈ سو آن. اور پھر انہوں نے سارا جو ہے نا وہی ریٹرک چلائی, اور اب یہ بندہ افغانی تھا, اس میں کوئی شک نہیں تھا. پر اس کا جو دوسرا ایلیمنٹ ہے سٹوری کا وہ کسی نے نہیں دیکھا, اور وہ چلایا بھی نہیں. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا کہ یار یہ اٹیک سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے گوگل سرچ چلائی, گوگل ٹرینڈز کی, جو فری جو ہے اوپن سورس ڈیٹا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اسرائیل سے یہ جو بندی جو مری ہے, سب سے زیادہ سرچز اس بندی کی ہوئی ہیں بیفور شی ڈائڈ. ابھی میں آپ کو گراف دکھاتا ہوں. یہ ہے گراف جو گوگل ٹرینڈز کا ہے, اور یہ شو کر رہا ہے کلیئر اسپائک. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اسرائیل میں اسی بندی کا سرچ نمبر آف سرچز زیادہ ہیں, اور یہ ورلڈ میپ ہے. تو یہ obviously وہ جو ہے ویژولی گوگل بتا رہا ہے, تو یہ اسرائیل ہے جہاں سے سرچ ہوئی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیسا, یہ دس از ٹو مچ آف اے کوئنسیڈنس. پھر لوگوں نے یہ جو سیرا بیکسٹروم جو ہے جس بندی جو مر گئی, اس کا کہا کہ یار اس کی سرچز کیسے ہوئی بھی ہیں اسرائیل میں. اگین لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کا کوئی لنک ہے, جس طرح 9/11 اور جو سارے October 7 یہ ساری جو ہوتا ہے, تو دیر از آلویز اے اسٹوری بیہائنڈ دا ریئل اسٹوری. تو بس یہ دو کوئک سٹوریز تھی. پر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ دیکھیں جو نظر آ رہا ہے وہ اصل میں ہے نہیں, اور جو موہت بھائی بھی ویک آن ویک بتاتے ہیں دجالیت جو ہے ایگزسٹ ان مینی فارمز. تو دس از ون آف دوز کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ اصل میں ہے نہیں, یا پھر کانٹیکسٹ چھپایا جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو بس یہ کوئک تھی اپڈیٹس میری سائڈ سے. اور موہت میں پاس آن کر رہا ہوں بعد میں اوور ٹو ایریا. جزاک اللہ خیر. اس کا جو یہ جو بندہ تھا افغانی, اس کا میں نے سنا یہ اس کا افغانستان میں ایک کانٹریکٹر بھی تھا, انہیں کا CIA کا ہی کانٹریکٹر تھا. تو اس لیے اس کو لایا گیا نا ادھر, وہ جو جتنا میں نے سنا تھا تو انہیں کا ہی بندہ تھا. اب وہ آیا تو جب تو طالبان آئے تو وہ بھاگ گیا. اب اس کو دوبارہ پھینک رہے تھے, تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو نہیں جانا. تو اس طرح کوئی بات تھی, میں نے اس کے بارے میں نہیں سنی. ہاں بالکل. اور باقی اور بھی کچھ چیزیں تھیں, میں نے بڑی ڈسٹربنگ چیزیں کل پرسوں دیکھی تھی. یہ دجال کے حوالے سے بھی, یہ جو راکٹ پروپلشن, یہ جو جیٹ, یہ جو ناسا وغیرہ کے ہیں, اس کے پرانے جب لوگوں بنانا شروع کیا 40s 30s میں, تو اس کے جو کچھ فاؤنڈرز ہیں وہ تو بالکل ہی شیطانی لوگ ہیں. اور بلکہ اس کے وکیپیڈیا میں دیکھا, یہ کوئی اسمائل ٹو جنہ والا جو ہے وہ بندے نے بتایا کہ بھئی یہ اس طرح کے ہیں لوگ, جا کے دیکھو. تو میں نے دیکھا جان پارسنز نام ہے, اس نے وہ خود سیٹانسٹ اور یہ وہ ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے پتہ نہیں کیا فلاں فلاں کوئی ایجپشن گاڈ الدجال کو میں نے وہ بیعت دی ہے. خود اس کہہ رہا ہے دجال کو بیعت دی ہے میں نے. تو وہ آپ دیکھیں اس سے زیادہ کھل کے کیا, جتنے بھی ہے بیسکلی راکٹ سائنٹسٹ, یہ جو مشہور جو سو کالڈ جینیس ہیں, وہ پیچھے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب اس کا کیا لنک ہے, کیا وہ اس سے کیا کرتے ہیں, اس پہ تو بہت ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی تھی ویکیپیڈیا پیج پہ کہ بھائی وہ تو کمیونیکیٹ بھی کرتے تھے, ریچولز بھی کرتے تھے, اس میں پتہ نہیں سیکشول ریچولز بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا گند ہے جو عام لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ ریئل لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جو راکٹس اڑ رہے ہیں, مسائل ٹیکنالوجی, اس کو جیسے نا اس کے شروع کے بنانے والے انجینئر سائنٹسٹ. تو ظاہر ہے ہم فور دا لانگسٹ امپریس ہوتے ہوئے آئے ہیں ناسا کی اس سے, یا یہ بڑی بڑی جو بھی ہے انویڈیا ہے اب, یا جو بھی ٹیسلا ہے, جتنے بھی یہ سارے اندر سے ان کی آپ دیکھ لیں یہ شیطان ہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں. تو میں لنک بھیج دوں گا وکیپیڈیا کا. ویسے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے, اس میں تو بیسیکلی میجک کرنا بتایا ہوا اس میں اس بندے نے. اور ان کی لائفز دیکھیں تو آپ تو اللہ معاف کرے. تو مگر یہ ریالٹی ہے, اور یہ اب تو حقیقت ہے سامنے آ رہی. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں آم، بچائے. تو ہمارے لیے سورۃ الناس فلق پڑھتے رہیں, پھونکتے رہیں ان شیطانوں کے بیچ میں. باقی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.